सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज गेट सीएसई में इन द सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेम स्पेसेस इन C++. So what exactly namespace is? A namespace is a declarative region that provide a scope to the identifiers like functions, variable, name of the different types inside it, right? Namespace declaration appears only at the global scope. The meaning of this definition we will see in the code. Namespace is a feature added in C++ which was not present in the C. Which IOStream is basically a header file which contains standard namespace in it, right? So suppose this is the program hash include IOStream int main. I am using cout object here. With the help of this, I am displaying something on screen. Let us see, right? This is the code. Here you can see this is the code hash include IOStream int main cout hello world return 0 and this, right? I am using IOStream only. I'm not using .h extension. I'm not using anything else apart from this. If I run this code, then what will happen? You can see here. You can see the error cout was not declared in this scope. Did you mean standard cout, right? So if I use this now, if I run this code, so with the help of standard library, std library, I am using cout. Right. So with the help of this scope resolution operator, these four dots are called scope resolution operator, which represents that I am using cout object, which is defined in standard library, and now I can use it. So it is not generating any kind of error, right? So this is the standard namespace, right? Another option to use it is, if suppose if I use C in object here, no, then this will again generate an error. Then what again I have to do is I have to write using STT scope resolution operator C in, right? And suppose if I want to use endl operator, endl, so then again I have to define it here. So instead of defining the namespaces again and again, I can use using namespace std. Namespace, basically namespace is standard std, which is defined in iostream.h header file, right? So syntax is using keyword, sorry, namespace space the standard library, right? Now suppose I will use this cout as well as endl, then it will not generate any kind of error. If I run this code, it will simply execute fine, right? Another use of namespace is, suppose this is my program. Suppose this is my program. Here you can see I have used this namespace std, right? In the main function, I have declared an integer variable n1 whose value is 2, right? And I am displaying integer value, right? Now suppose I am redefining this variable n1 with another data type, and I am assigning the value 2.5 to this n1. Now suppose I want to print this n1 once again, then what will happen? What will happen? This will throw this error, conflicting declaration float n1, right? एक बार आपने integer type का declaration कर दिया था, तो अगर आप उसको रीडिफाइन करते हैं किसी और डेटा टाइप में, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग डिक्लेरेशन का एरर जनरेट हो जाएगा. तो अब हम देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेस हम इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं. सो हियर यू कैन सी आई एम यूजिंग माय पर्सनल नेम स्पेस, राइट? स्टैंडर्ड नेम स्पेस तो आपने यूज कर लिया था. अब सपोज मुझे अपना नेम स्पेस डिफाइन करना है, तो मैंने लिखा नेम स्पेस स्पेस यूजर डिफाइन कुछ भी नेम दे दिया, राइट? उसमें मैंने एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया n1 जिसकी वैल्यू है 2.5, राइट? अब मेन फंक्शन ने क्या किया, अगेन n1 ही डिफाइन किया है, n1 ही डिफाइन किया है जिसका डेटा टाइप अब की बार इंटीजर है. अब मैंने n1 को प्रिंट कर दिया. अब आपको फ्लोट वाला n1 प्रिंट करना है अगर, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपने नेम स्पेस डिफाइन किया है उस नेम स्पेस का नेम लिखना है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना है, और उसके अंदर आपने जिस भी वेरिएबल को डिफाइन किया था वो लिखना है.
अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली प्रिंट हो रहा है। इंटीजर वैल्यू को भी प्रिंट किया उसने 2 और फ्लोट वैल्यू को भी 2.5 प्रिंट कर दिया है विदाउट जनरेटिंग एनी कॉन्फ्लिक्टिंग एरर। तो ये कैसे रिजॉल्व हुआ? सो विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेस की हेल्प से आपने रिजॉल्व किया है। आपने डेफिनेशन में देखा था कि अ नेम स्पेस इज अ डिक्लेरेटिव रीजन दैट प्रोवाइड अ स्कोप टू द आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, टाइप डिफाइन हो सकता है ना। तो हमने एक स्कोप प्रोवाइड कर दिया उसको डिफाइन होने के लिए, आपने रीडिफाइन कर दिया। जैसे कि आपने ये वेरिएबल के फॉर्म में देखा, अब हम इसको एक फंक्शन के एग्जांपल से देखते हैं। सपोज दिस इज माय प्रोग्राम, राइट। मैंने क्या किया है, एक एरिया नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें मैं कैलकुलेट कर रही हूँ एरिया ऑफ सर्कल। तो फॉर्मूला लगा दिया, वो पाई आर स्क्वायर 3.14 into 7 into 7 with the help of this I will calculate the area of circle. अगेन मैंने एक एरिया फंक्शन वंस अगेन ले लिया है और जिसमें मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, है ना। नेम सिमिलर रखना था हमको, ठीक है। अब मेन फंक्शन में मैंने क्या किया, दोनों एरिया फंक्शन की कॉलिंग कर ली है, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, राइट। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो देखते हैं क्या एरर जनरेट होता है। अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो देखिए एरर आता है रीडेफिनेशन ऑफ वॉइड एरिया, ठीक है। और आ गया नोट वॉइड एरिया प्रीवियसली डिफाइंड हियर, राइट। आप मतलब कि ऑलरेडी आपने डिफाइन कर रखा है, आप उसको दोबारा रीडिफाइन करेंगे तो भी वो क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। तो इस प्रॉब्लम को भी हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेस आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो समझते हैं नेम स्पेस से कैसे करेंगे। तो हियर यू कैन सी, राइट, मैंने वही सिंपल आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ले लिया, राइट। अब मैंने क्या किया, अपना पर्सनल नेम स्पेस बनाया। तो आपको यूज करना पड़ेगा नेम स्पेस स्पेस नेम स्पेस का नेम, यूजर डिफाइन कुछ भी नेम रख सकते हैं। तो फर्स्ट के लिए मैंने फर्स्ट रख लिया, सेकंड के लिए सेकंड रख लूंगी। तो फर्स्ट लिखा और उसके अंदर एक एरिया फंक्शन डिफाइन कर दिया जिसमें मैं सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर रही हूँ, राइट। नेक्स्ट में नेम स्पेस सेकंड लिखा जिसमें एरिया फंक्शन अगेन रीडिफाइन किया है जिसमें हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। फिर मेन फंक्शन में आपको दोनों एरिया फंक्शन की कॉलिंग करनी है। तो कॉलिंग ऐसे नहीं होगी, कॉलिंग कैसे होगी, विद नेम स्पेस नेम, राइट। तो नेम फर्स्ट वाले नेम स्पेस का नाम क्या है, फर्स्ट, और सेकंड वाले का सेकंड है। तो देखिए आपने लिखा फर्स्ट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया और एरिया फंक्शन कॉल कर लिया, तो फर्स्ट वाले का एरिया कॉल हो जाएगा। सेकंड वाले के लिए क्या किया, सेकंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एरिया फंक्शन, राइट। अब अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे ये कोई एरर जनरेट नहीं कर रहा है। मैसेज डिस्प्ले कर दिया, एरिया ऑफ टू डिफरेंट एरिया, एरिया ऑफ सर्कल भी प्रिंट कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी प्रिंट कर दिया, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेसेस वी हैव रिजॉल्व्ड दिस रीडिक्लेरेशन एरर, राइट। ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन को अगर आपको फिर से रीडिफाइन करना है तो आप नेम स्पेसेस की हेल्प से ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज हिट दी लाइक बटन, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।